ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके जी। सो I was saying that in the common gate configuration, the input signal is applied at the source terminal, the output signal is taken from the drain terminal, and the gate is common between source and drain. So let me draw the common gate configuration. I'm going to draw the common gate configuration over here. So let me quickly draw the common gate configuration. We are going to have a resistance Rs at the input. Then we are going to have a junction field effect transistor. So this is going to be my junction field effect transistor. And because the gate is common, we are going to have the n-channel junction field effect transistor. So the direction of array will be like this. And because the gate is common, so gate will be grounded. And then on the other side, we are going to have the drain terminal. With the drain terminal, we are going to have the resistance RD and then the DC voltage source, which is the VDD, plus minus VDD. The plus terminal is greater, the minus terminal is smaller. So this is going to be my VDD voltage, and this is going to be my coupling capacitor C2, and this is going to be my V0. This is C2, this is RD, this is VDD. This is N channel JFET. We have a drain over here, we have a source terminal over here, and we have a gate terminal over here. And this gate is grounded. Okay, now और इधर हमारे पास मैंने C1 नहीं लगाया तो C1 भी हमारे पास होगा. दिस इज गोइंग टू बी अवर C1 एज वेल. तो इधर हमारे पास एक कपलिंग कैपेसिटर C1 होगा. And there we are going to have the resistance Rs. See, and this is going to be, this is my C1 and this is going to be my input voltage. So my, this is going to be my input voltage and this is going to be my output voltage. So this is going to be the configuration and this is going to be my output impedance. So this is the configuration of the common gate. This is the common gate configuration. Now again, to perform the AC analysis, the coupling capacitor C1 and C2 will be shorted out. So we are going to replace these coupling capacitors with short circuits. So I'm going to replace this coupling capacitor by a short circuit, and I'm also going to replace this coupling capacitor by a short circuit. Also, the voltage VDD is going to be grounded. So we are going to have a ground over here. So this will be short circuit and will be connected to the ground. So we are going to have a short circuit over here. This coupling capacitor will be replaced by a short circuit and this will be connected to the directly connected to the ground. So there will be no VDD over here because VDD is made equal to 0 volt because VDD is grounded. So now this is a bit simplified diagram of the common gate configuration. Now कुछ चीजें हैं जो सामने देखें हमें क्लियर है. ये देखें सोर्स टर्मिनल इज इक्वल टू वी आई. तो इधर हमारे पास देखें वी आई और सोर्स टर्मिनल शॉर्टेड है. तो आई कैन ऑलवेज राइट दैट वी आई इज इक्वल टू वी एस. क्लियर है. शॉर्टेड है. दिस इज सोर्स टर्मिनल. सोर्स टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द, ये जो सारा टर्मिनल है ये सारा टर्मिनल दैट इज वी आई. सही, वो इनपुट है. तो वी आई इज इक्वल टू वी एस. And now on the other side, we have V naught and VD. So actually V naught is equal to VD as well. Now we have gate grounded. To VGS क्या होगा? Again, VGS is going to be equal to VG minus VS. And because gate is grounded, तो VG हमारे पास 0 है. So VG is going to be 0 minus VS. VGS is going to be 0 minus VH, which means that VGS is equal to minus VS. Clear? And VI is equal to VS or VS is equal to VI. So in place of this VS, I can replace the VI. So VGS is going to be equal to minus VI. This is my one of the equation कह ले या इसको one of the results कह ले for the common gate configuration. वो नजर आ रहा है. VI directly connected है VS के साथ, V not directly connected है VD के साथ. VG grounded है तो VG is equal to 0 है. VGS is equal to VG minus VS. So we have 0 minus Vs, so VGS is equal to minus Vs, and because Vs is equal to Vi, so we have VGS is equal to minus Vi. Now ये जो रिजल्ट है वो मुझे जेफेट का इक्विवेलेंट सर्किट लगाने से पहले ही मालूम हो चुका है. अब मैं जेफेट का इक्विवेलेंट सर्किट इधर लगा लेता हूँ.
सही. So in place of this thing, I am going to replace the JFET AC equivalent circuit or JFET AC equivalent model या small signal model. तो उसको मैं replace करता हूँ यहाँ पे. सही. So we are going to have, let me write over here. वही में हमारे पास input होगा. Let me change another color. Okay. So we are going to have an input over here. Again resistance RS होगा. Clear है. उसके बाद हम AC इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा विच विल बी GM VGS, और इसके पैरेलल में हमारे पास एक रेजिस्टेंस RD होगा विच इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर RD. दिस इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर. उसके बाद अगेन ये हमारे पास एक RD होगा आउटपुट साइड पे. ओके. एंड देन इस साइड इधर मैं लाइन लगा लेता हूँ और इसको मैं गेट कह लेता हूँ. सही. ये मेरे पास गेट है और ये ग्राउंडेड हो जाएगा. अब एसी इक्विवेलेंट सर्किट में ये भी था कि ये जो इधर हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस की वजह से इधर हमारे पास ओपन सर्किट होगा. तो ये जो गेट है दिस इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस सर्किट. So we are again going to have a source terminal over here, a drain terminal over here. This is my resistance RD, this is my resistance RS, और ये जो है ये मेरे पास output होगा because in case of common gate the output is taken from the drain terminal. So this is going to be my Z naught, this is going to be my Zi, and this is going to be again my Vi. Again you can see this is Vi, ये तो grounded है. This is Vi is equal to Vs and V naught is equal to Vd. सही. Because this line is grounded, the gate is grounded. Now again इधर हमारे पास Z naught हो जाएगा और इधर हमारे पास V naught. So now we have drawn the AC equivalent model of this circuit. If you can have a look, we have replaced this by this thing, by this thing. Clear है जी? So now the AC equivalent model has been placed. Now we are going to find the three parameters, which is the input impedance, the output impedance, and the voltage gain. Voltage gain denoted by AV gain. So we are going to find these three parameters. So let us start. For finding the input impedance Zi, what I'm going to do is that I'm going to assume that we have a resistance Zi prime over here. And I'm going to assume that we have a voltage Vi prime over here. And this Vi prime is actually equal to the Vs. ये Vi prime भी जो हम assume करेंगे, that is actually equal to the Vs. So we have Vi prime is equal to Vs is equal to Vi is equal to minus Vgs, because Vgs is equal to minus Vi. तो ये चारे इधर हमारे पास ये जो नोट है, लेकिन इसको अब मैं V प्राइम कह रहा हूँ. सही है. अपनी आसानी के लिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं इसको V प्राइम कह रहा हूँ. और मैं कहता हूँ कि इस जो सर्किट में मेरे पास जो करंट फ्लो हो रहा है that is I prime. Now Zi, what will be Zi? Zi will be equal to Rs parallel to this Zi prime. ये जो मैं Zi dash या Zi prime निकालूंगा उसका ये parallel होगा input impedance. But first I need to find the Zi prime. So for the Zi prime, I have assumed that the current I prime is flowing over here. So now at this node, let me call it a node A. This is also equal to V prime. In this node, I have the voltage V prime, which is equal to the Vs, which is equal to the Vi, which is equal to the minus Vgs. And let me call, okay, so I don't need to call this anything. So I have a voltage V prime over here, and let me apply KCL at node A. देखिए अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, ये तो पहले से जाहिर था. KCL ही सिर्फ मैं अप्लाई करूंगा and I am going to get equation. Equation लंबी है लेकिन आसान है. So I'm going to apply a KCL over here. तो देखें हमने कहा कि जी इधर हमारे पास I prime flow हो रहा है. So I prime is flowing over here. And this current VGS is flowing over here. Now the direction of RD is not known. By KCL में जैसे हम करते हैं कि उसको हम direction outward ले लेते हैं. तो इस केस में हम outward ले लेंगे. सही है. So again we are going to assume that direction ID is around here.
So we are going to apply a KCL over here, and this going to be equal to, we are going to have I prime, GMVGS is flowing into the node, I prime is also flowing into the node. I prime plus GMVGS. What about the RD that we have assumed is flowing out of the node? सही, जब नोड ए पे है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये आउटवर्ड जा रहा है, जिस नोड पे भी जिसका करंट का डायरेक्शन नहीं मालूम उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो आउटवर्ड जा रहा है, जैसे हम KCL में करते रहे. So this is going to be I prime plus GMVGS is equal to RD, which means that I prime is going to be equal to IRD minus GMVGS. Now what is VGS equal to in terms of V prime? VGS is equal to minus V prime, because VGS is equal to minus VI and V prime and VI are equal, so VGS is equal to minus V prime. So I can replace this by minus V prime. So we are going to have I prime is equal to IRD minus GM into V prime. I prime या I dash IRD plus GM V prime. क्लियर है? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, KCL लगा दिया और मैंने कहा VGS इज इक्वल टू माइनस वी प्राइम, तो ये जो है ना ये मेरे पास ये प्लस हो जाएगा. सही है, ये माइनस वी प्राइम था तो माइनस इंटू माइनस मेरे पास प्लस आ गया, बिकॉज VGS इज माइनस वी प्राइम, वो क्लियर है, वो इधर से नजर आ रहा है. अब लेट्स सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 कह लेता हूँ. नाउ व्हाट इज IRD देखिए हमने डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ एज्यूम किया है, तो IRD इज this node minus this node divided by this resistance RD. अब इस नोड को मैं VI भी कह सकता हूँ, इस नोड को मैं माइनस VGS भी कह सकता हूँ, इस नोड को मैं VS भी कह सकता हूँ, लेकिन इधर इस नोड को मैं V प्राइम ही कहूँगा. क्यों? क्योंकि बिकॉज आई वांट टू फाइंड द ZI प्राइम which is equal to the V प्राइम divided by I प्राइम. सही, तो इस नोड को अब मैं V प्राइम ही कहूँगा. सही, तो वी आर गोइंग टू हैव, अब जो V नॉट है इस दूसरे साइड पे या VD है, ये VD या V नॉट है, इसका हम कहेंगे कि जी दिस इज इक्वल टू द I प्राइम RD, बिकॉज दिस इज इक्वल टू द I प्राइम RD बिकॉज वी हैव एज्यूम कि सर्किट में I प्राइम फ्लो हो रहा है. सो वी कैन राइट दैट IRD is going to be equal to V prime minus I prime RD divided by RD. तो IRD की जगह मैं सिर्फ ये लगा दूंगा and I am going to get the equations. So this will be equal to I prime is equal to V prime minus I prime RD divided by RD plus GM V prime, which implies, इसको मैं अलग अलग करूंगा, दोनों के साथ डिवाइडेड है कि I prime is equal to V prime RD minus I prime RD divided by RD plus GM V prime. नाउ I प्राइम जो है उसको मैं इस साइड पे करूंगा, V प्राइम को दूसरी साइड पे, बिकॉज आई नीड टू फाइंड V प्राइम बाय I प्राइम. तो I प्राइम को मैं इस साइड पे कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड पे I प्राइम हो जाएगा I प्राइम प्लस I प्राइम RD डिवाइडेड बाय RD and this is equal to V prime RD plus GM V prime. So I'm going to take the I prime common over here. ये मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ, फिर आगे जाके इंशाल्लाह हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे. 1 by RD डिवाइड बाय RD इक्वल टू V प्राइम 1 by RD plus GM. Now ZI prime again, as I mentioned earlier, is equal to V prime by I prime. So V prime by I prime, I can find V prime by I prime over here, and that will be equal to 1 plus RD divided by RD GM plus 1 by RD. So this was our equation of ZI prime. Now what will be ZI? ZI is going to be equal to RS parallel to the ZI prime. And this is ZI prime. So ZI will be equal to RS parallel to this equation. So this is going to be my equation. This is going to be equation 3 and this is going to be my equation 4. किसको क्लियर नहीं है जी?
हेलो, आवाज आ रही है मेरी जी आपको? जी जी, आवाज आ रही है सर, क्लियर है। अच्छा, ये इंटरनेट कनेक्शन मैं दूसरे कनेक्शन के साथ। ये लास्ट पॉइंट जरा एक्सप्लेन कर दें, ये जो आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, मैं ज़रा जो है दूसरे कनेक्शन के साथ कनेक्ट हो जाऊं बिकॉज दिस नेट इज मेकिंग मी अ प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया जी। ये लास्ट सर इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 तो देखे ना, हमने इस जो नेटवर्क है उसमें एज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास जेड आई प्राइम है। तो ये सारा कुछ मैंने जेड आई प्राइम निकाल लिया। अब जेड आई किस चीज़ के बराबर होगा? जेड आई विल बी इक्वल टू आर एस एन पैरेलल टू दिस जेड आई प्राइम। तो वो मैंने इधर लिख दिया है कि जेड आई इज इक्वल टू आर एस पैरेलल टू दिस जेड आई प्राइम। और ये सब कुछ जो मैंने एज्यूम किया कि इधर मेरे पास वी प्राइम है और इधर आई प्राइम है, और इधर मैंने के सी एल लगा के, सिंपल के सी एल लगा के, आप के सी एल लगा ले, बाकी आपसे डायरेक्ट ही होगा, सही है, बाकी डायरेक्ट ही आ जाएगा, बस आपने एंड में वी प्राइम और आई प्राइम निकालनी है। तो वो मेरे पास ये आ गया। तो जो जेड आई है दैट वाज इक्वल टू आर एस पैरेलल टू द जेड आई प्राइम। सही है जी? यस सर। So this is so this is going to be my actual equation. So this is my actual equation. Fine, this is my actual equation. And for the approximate equation, we assume that अगर RD हमारे पास 10 times greater than or equal to the RD है, then approximate equation is going to be equal to RS parallel to 1 by GM. वाई? बिकॉज दिस आर डी एंड आर डी उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारे पास बहुत कम है, ये हमारे पास जीरो है। तो इसको भी हमने जीरो एज्यूम कर लिया। ये वन आर डी को भी हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारे पास बहुत कम है, इसको हम निकाल देंगे। तो वी आर गोइंग टू गेट 1/gm। जेड आई प्राइम विल देन गोइंग टू बी इक्वल टू 1/gm। एंड फिर जो जेड आई है आर एस पैरेलल टू दिस 1/gm, तो हमारे पास जेड आई आ जाएगा आर एस पैरेलल। ये जो है ये पैरेलल का निशान है, सही है, दिस मीन्स पैरेलल, दिस आल्सो मीन्स पैरेलल। So Rs is going to be equal to the parallel by 1/gm, and this is my approximate equation. अप्रोक्सीमेट इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें आर डी का जो इफेक्ट है, ये छोटा आर डी, इसका जो इफेक्ट है वो निगलेक्ट किया जाता है, सही है। सो दिस वाज माय रेजिस्टेंस आर डी। अब मैंने इनपुट फाइंड कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज टू फाइंड द आउटपुट इम्पिडेंस। और अगेन आउटपुट इम्पिडेंस के लिए मैंने क्या करना है, दैट आई नीड टू मेक वी आई इज इक्वल टू जीरो। जब वी आई मेरे पास जीरो हो गया है, तो दिस मीन्स, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट हमारे पास वी एस भी ज़ीरो है, क्योंकि ये देखें वी आई इज इक्वल टू वी एस। अब ये मेरे पास ज़ीरो हो गया, इधर मैंने जो है ना शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको, वी एस को, वी आई को ज़ीरो कर दिया। ये वी आई था ना, इसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये डायरेक्टली मैंने इसको ग्राउंड के साथ, क्योंकि शॉर्टेड कर दिया, वी आई ज़ीरो हो गया, तो वी आई ज़ीरो करने के लिए मुझे शॉर्टेड करना पड़ेगा। जब ये शॉर्टेड हो गया तो ये आर एस भी शॉर्टेड हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये वाली लाइन ये हमारे पास शॉर्टेड हो जाएगी। और जब ये वाली लाइन हमारे पास शॉर्टेड हो गई है तो वी आई भी शॉर्टेड है, अब वी एस भी शॉर्टेड हो गया, क्योंकि वी एस भी, अब देखें ना, ये वी एस है, इसको मैंने शॉर्टेड कर दिया तो ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो गया। चले मैं कर लेता हूँ, फिर दोबारा मिटा के हम लगा लेंगे, सही है। ये देखिए ये वी एस है, इसको मैंने वी आई को शॉर्ट कर दिया तो ये डायरेक्टली देखिए ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो गया। तो हमारे पास जो वी एस है वो भी जीरो हो गया। अब वी जी एस क्या होगा? वी जी एस इज अगेन इक्वल टू वी जी माइनस वी एस। वी जी तो पहले से जीरो है, वी एस भी जीरो है, तो वी जी एस हमारे पास जीरो आ गया। जब वी जी एस जीरो आ गया तो ये वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी ओपन सर्किटेड। क्लियर है? तो इधर मैं ओपन सर्किट रिप्लेस करूंगा, सही है। तो मेरे पास, लेट मी रिप्लेस दिस बाय ओपन सर्किट। चलो, ये मैं सिर्फ जेड नॉट फाइंड करने के लिए कर रहा हूँ, सही है। तो ये मेरे पास ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो गया। अब आप देखें जेड नॉट को, एक तो इस ड्रेन टर्मिनल से ग्राउंड तक आर डी कनेक्टेड है, दूसरा देखें इसी ड्रेन टर्मिनल से इस ए पॉइंट तक ये आर डी कनेक्टेड है, लेकिन ए भी अब ग्राउंड हो गया है। क्लियर है ना? देखिए ना, ये यस सर।
हाँ, ड्रेन और यस ग्राउंड के सर। दरमियान आर डी कनेक्टेड है, ये भी ड्रेन और ग्राउंड के दरमियान आर डी कनेक्टेड है, ये भी ग्राउंड हो गया ना सारा। ये इधर हमने इनपुट को जो है ना शॉर्टेड कर दिया है, वी आई जीरो कर दिया है इधर हमने आउटपुट इम्पिडेंस के लिए। आउटपुट इम्पिडेंस के लिए वी आई जीरो करते हैं, सही है। तो हमारे पास ये भी ग्राउंडेड हो गया, तो ये दो आपस में पैरेलल में हो गए। तो आई कैन राइट Z नॉट इज इक्वल टू आर डी पैरेलल टू द कैपिटल आर डी, क्योंकि दोनों पैरेलल में, एक साइड पे दोनों वी नॉट या वी डी के साथ ड्रेन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, दूसरी साइड पे दोनों ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ, अब ये भी ग्राउंड के साथ देखिए कनेक्ट हो चुका है, सही है। ये तो सारा ओपन सर्किट हो गया, ये तो मिट गया, तो दोनों ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, सो वी हैव Z नॉट इज इक्वल टू आर डी। अगेन इफ यू वांट टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ आर डी, मतलब जब आर डी अगर 10 टाइम्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 टाइम्स द कैपिटल आर डी है, तो Z नॉट विल बी इक्वल टू द आर डी। सो दिस इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन बी, सही है। ये मेरे पास Z नॉट की वैल्यू आ चुकी है, इज इट क्लियर? यस सर। Okay, the third and important point is the voltage gain, which is AV. Now, what will be V naught equal to? Again, V naught will be equal to into the drain current into the जो है Z naught है, और drain current again that is GMVGS. So GMVGS and output is RD parallel to the capital RD. That will be equal to this thing. सही, इधर मैं एक लाइन लगा लूँ ताकि आप लोगों को okay. So V naught is सर ये equal to माइनस टाइम, जी जी माइनस माइनस वी साइन आई भी होगा, मतलब लेकिन देखते हैं कि माइनस साइन है कि नहीं है। ड्रेन टू सोर्स है, तो वी आर गोइंग टू हैव दी माइनस साइन एज वेल। पोलैरिटी दूसरी तरफ। जी बिल्कुल, सो वी आर गोइंग टू हैव दी माइनस साइन एज वेल, सो वी आर गोइंग टू हैव अ माइनस साइन ओवर हियर। नाउ VGS, अगेन VGS किस चीज के बराबर था, सही है। अब ये जो मैंने VI शॉर्ट किया था ना, वो Z नॉट के लिए शॉर्ट किया था, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। VGS किस चीज के बराबर था Z नॉट शॉर्ट करने से पहले? VGS वाज इक्वल टू, माइनस वी आई। जी बिल्कुल, माइनस VI के बराबर था। सो वी आर गोइंग टू हैव V नॉट इज इक्वल टू माइनस GM, एंड दिस इज गोइंग टू बी वी इक्वल आई टू नहीं माइनस VI, हाँ माइनस जी वी आई है माइनस सर। V, माइनस वी आई माइनस प्लस हो जाएगा। ओके। सो इस सीन में हमारे पास आउटपुट पे जो है वो ड्रेन करंट है, सही है। आउटपुट पे जो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज ड्रेन करंट, एंड दैट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द रेजिस्टेंस आरडी। सो दिस विल नॉट बी इक्वल टू AV minus GMVGS RD parallel to RD. In fact, we are going to apply the KCL at the not terminal. Clear है? So this will not be equal to like this, so I have to remove this. So to find to find this uh, output voltage, first of all we need to find the output voltage. आउटपुट वोल्टेज जो है दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन जिस GM एंड RD भी उसमें फ्लो हो रहा है, सिर्फ GM VGS फ्लो नहीं होगा, सही है। अगर इसमें सिर्फ GM VGS फ्लो हो रहा था तो मैं माइनस VGS लिखता, सही है। देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इधर देखिए मैं दोबारा वही सोर्सेज सब कुछ लगा लेता हूँ, फिर आपके पास वो क्लियर होगा। अगर इधर मेरे पास RD ना होता ना, तो फिर मैं इधर ID, इधर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको डायरेक्टली कह लेता कि वो माइनस GMVGS है, ऐसा ही है। लेकिन इधर अब हमारे पास RD है, तो आई कैन नॉट से डायरेक्टली, सही है। RD का इफेक्ट भी अभी इंक्लूडेड है, सो आई कैन नॉट से डायरेक्टली, दैट इज व्हाई आई नीड टू अप्लाई अ KCL ओवर हियर। So we are going to apply the KCL over here, and we are going to assume कि जी ID इधर flow हो रहा है, सही है। This is my ID and V naught will be equal to ID RD, और we are going to assume कि इधर भी हमारे पास जो current flow हो रहा है that is divided into two parts। इधर भी अब देखें, उधर A naught पे हमने assume किया था that it is flowing outward, again we are going to assume that it is flowing outward। So अब जो A पे हमने assume किया था that will be not acceptable, okay। So now we have assumed that the current is flowing again outward.
तो इधर हम जो है KCL अप्लाई करेंगे एंड KCL विल बी इक्वल टू आई डी बाहर जा रहा है, इसके अलावा GM VGS भी बाहर जा रहा है और इसके अलावा IRD भी बाहर जा रहा है, सही है। एंड दिस सम विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसी इक्वेशन को हम नीचे लिख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सही है। सो नाउ वी हैव IRD प्लस ID प्लस GM VGS। सर ये इसका आई प्राइम के साथ है, आई जी प्राइम के साथ डायरेक्ट लिख सकते हैं। जी किस चीज़ को? सर जी देखिए इस रजिस्टर के अक्रॉस जो आई प्राइम फ्लो कर रहा है ना, तो आई जी प्राइम की बिल्कुल। हमने वैसे भी वैल्यू फाइंड की हुई, तो डायरेक्ट लिख जी सकते हैं। जी, लेकिन अभी मुझे ID चाहिए। आपकी बात सही है कि इस केस में ये इक्वल टू आई प्राइम है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखें ना, अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, आप वो भी तो देखें। मैं वोल्टेज गेन फिर फाइंड कर केसीएल रहा हूँ। लगाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आ जाए। आई प्राइम की वैल्यू आप उस तरह भी कर सकते हैं कि आई प्राइम की वैल्यू इधर पुट कर लें, लेकिन देखें उसमें आप जब आई प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आपके पास जो, देखिए वी प्राइम टर्म्स तो है लेकिन वी नॉट टर्म्स है उसमें, वी नॉट टर्म्स भी शायद हो, सही है, वी नॉट टर्म्स भी हो, लेकिन उसके बाद अगेन यस सर। अगर आप पुट करेंगे आप पुट कर सकते हैं बिकॉज वी प्राइम इज इक्वल टू वी नॉट, सही है। इक्वेशन है, आप जैसे भी निकालना चाहें, सही है, आप निकाल सकते हैं। यस सर, होगी ना वी नॉट इनटू आई, आई नॉट। हाँ, बिकॉज दिस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इधर हमारे पास वी डी है दैट इज इक्वल टू वी नॉट, सही है। और ये जो आई प्राइम है दैट इज ऑफ कोर्स इक्वल टू द आई डी, सही है। तो ये मैथ्स की इक्वेशन है, आप कई तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड वी नॉट बाई वी आई, सही है। तो इधर आपने वी प्राइम की जगह तो चले आपने जो है ना वी नॉट वी आई लगा दिया है, अब वी नॉट फिर इसमें कैसे आएगा, फिर आपको जो है ना इधर जो है वी नॉट कुछ करना पड़ेगा एंड यू कैन सॉल्व दिस, लेकिन फिर दोबारा जो है ना, चले आप उससे भी कर लें कि आपके पास कैसे आता है। अगेन मैथ्स इक्वेशन है, आप कई तरीकों से उसको कर सकते हैं, क्लियर है। अब ये देखिए इधर वी प्राइम है, तो अगेन सवाल ये होगा कि सर आपने इसको वी आई क्यों नहीं लिखा, तो मैंने इसको वी आई इसलिए नहीं लिखा कि आई नीड टू फाइंड दी जेड आई विच इज इक्वल टू द वी प्राइम बाई आई प्राइम। तो ये मैथ्स इक्वेशन है, यू कैन प्ले विद इट एज यू वांट, सही है। So we have applied KCL over here and that is equal to GMVGS is equal to 0. Okay, अब जो है मैं V नॉट बाई वी आई फाइंड करने लगा हूँ और V नॉट हमारे पास ID RD होगा। वो आपकी बात सही है कि that will also be equal to I prime into RD, लेकिन अब हम हमारे पास ID RD है, सही है। So now IRD, what will be IRD in this case now? IRD in this case will be equal to this voltage minus this voltage divided by resistance RD. अब अगेन दिस वोल्टेज को मैं VD भी कह सकता हूँ, इसको मैं V नॉट भी कह सकता हूँ, लेकिन अब मैं V नॉट कहूँगा क्योंकि मुझे V नॉट बाई वी इन चाहिए। इसको मैं जो है ना V प्राइम भी कह सकता था, इसको मैं VS भी कह सकता था, इसको मैं माइनस VGS भी कह सकता था, लेकिन अब मैं इसको VI कहूँगा क्योंकि मुझे VI कहूँगा क्योंकि मुझे V नॉट बाई VI चाहिए। So this यस सर। IRD is equal to V naught minus VI divided by RD. See? So we are going to replace the IRD with this thing. So let me go back to my equation and let me replace this by this thing. Okay. So either say ID is going to be equal to minus IRD plus GM VGS. And अब मैं IRD की जगह वही लगाऊंगा which is minus VI minus V naught minus VI, not V naught minus Vi. This will be V naught minus Vi divided by Rd and plus Gm. This Vgs is equal to minus Vi. So we are going to place minus Vi over here. So then we are going to have the ID. The ID current will be equal to Vi minus V naught divided by Rd plus Gm Vi. Okay, now this is ID and we know that V naught is equal to IDRD. IDRD, V naught. So I'm going to multiply RD with this whole thing. So I'm going to say that V naught is equal to IDRD. So this is ID and I'm going to multiply RD with this whole thing. So this will be VI
कैपिटल आर डी डिवाइड बाय आर डी, देखिए वी आई के साथ मैंने आर डी मल्टीप्लाई कर लिया है एंड वी हैव द आर डी ओवर हियर एंड देन माइनस वी नॉट बाय आर डी इंटू कैपिटल आर डी, वी नॉट के साथ भी मल्टीप्लाइड हो चुका है एंड देन वी हैव जी एम वी आई इंटू आर डी, सही। नाउ वी हैव वी नॉट एंड वी आई टर्म्स, सही है। वी नॉट अगेन मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं सेपरेशन कर लेता हूँ, so वी आई डिवाइड बाय आर डी माइनस वी नॉट आर डी डिवाइड बाय आर डी प्लस जी एम वी आई आर डी। नाउ वी नॉट टर्म्स को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, so वी नॉट प्लस वी नॉट आर डी डिवाइड बाय आर डी इज इक्वल टू वी आई कैपिटल आर डी डिवाइड बाय आर डी प्लस जी एम वी आई आर डी। Now take V naught common from here, we are going to get V naught 1 plus RD divided by RD is equal to VI RD divided by RD plus GM RD. Now we need to find a V naught by VI. So V naught by VI is going to be equal to this thing divided by this thing. So we are going to have RD divided by RD plus GM transconductance RD divided by 1 plus RD divided by RD. So this is going to be my actual equation for the voltage gain. So this is my actual equation for voltage gain. Actual equation for voltage gain. Okay, now if I assume that RD is going to be equal to 10 times RD, then the effect of RD will going to be neglected and we are going to have the approximate equation for RD as GM RD. If you can have a सर look बाहर now, जी, बाहर स्टूडेंट वेट कर रहे हैं सर। okay. If you can have a look, we do not have a negative sign over here. So we have no phase shift. सही है, कोई phase shift नहीं है, no inversion, सही। So this was all about the solving the voltage gain, the input impedance and the output impedance. Is it clear to you people? थोड़ी सी मैथ ज्यादा है लेकिन that again that is easy, सही है। Yes, sir. क्लियर है जी। Yes, sir. अच्छा, अगर आप लोगों को लगता है कि ये इक्वेशन बहुत लंबी चौड़ी है एंड जो आपने सर अगर आपने आरडी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट ही करना है एंड में, तो क्यों ना आरडी के इफेक्ट को पहले नेग्लेक्ट किया जाए, तो वो बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो अब मैं जो है ना पहले से ही आरडी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर लेता हूँ, सही है। मेरे पास जो ओके तो अब मैं पहले से ही जो है ना आरडी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर लेता हूँ, तो ये सारा मैं मिटा लेता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो इसमें, सही है। इसको भी मैं मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा बिजली भी चली गई है। ओके, तो ये जो आर डी है ना, अब इसको मैं इनफाइनाइट कंसिडर कर लेता हूँ। क्लियर है जी? ओपन सर जी, इसको मैं ओपन सर्किट कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, सो नाउ इसको मैं ओपन सर्किट कंसिडर कर लेता हूँ। सो वी आर गोइंग टू हैव वी जी एस, ये वही आर एस है, ये वही आर डी है, सही है। ये करंट की डायरेक्शन अब वो नहीं रही, सही है, इसको हम दोबारा करेंगे। ओके एक्चुअली मैंने इतनी चीज़ें उसमें लिखी हैं ना कि वो रिप्लेस ही नहीं हो रहा। ओके अगेन वी नॉट, अब देखें इक्विवेलेंट सर्किट की जगह इस इक्विवेलेंट सर्किट वही कॉमन गेट है ना, लेकिन अब इस इक्विवेलेंट सर्किट की जगह मैंने आर डी को इन्फिनाइट कर दिया, तो आर डी इधर से गायब हो गया, सही है। तो आर डी क्या हो गया, गायब हो गया। अब देखिए अगेन वी आई टू अगेन वी एस के बराबर है, वो माइनस वी जी एस ही होगा हमारे पास, सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। वी नॉट अगेन आर डी के बराबर है। अब हमारे पास देखें, ये हमारे पास आर डी है, इधर हमारे पास जेड नॉट है। अब आर डी किस, जेड नॉट किस चीज के बराबर है, डायरेक्टली नजर आ रहा है। यस आर डी के बराबर है जी बिल्कुल, क्योंकि अब इसमें हम क्या करेंगे, वी आई को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट जी यस सर बिल्कुल, तो हमारे पास जेड नॉट जो है वो सिर्फ आर डी के बराबर है। क्लियर है जी? यस इधर जो यस अप्रोक्सीमेट इक्वेशन थी। अच्छा
अब अगेन हम कहते हैं कि जी इधर फॉर एग्जांपल हमारे पास वी आई प्राइम हम अगेन कंसिडर कर लेते हैं, और इधर हम कहते हैं कि जी ये मेरे पास आई प्राइम है। अब आई प्राइम किस चीज के बराबर है? माइनस VGS GM के। गुड, गुड। आई प्राइम जो है वो हमारे पास जी एम, ये जो है ना जी एम वी जी एस है। आई यस सर, प्राइम इज माइनस। इक्वल टू माइनस जी एम वी जी एस, सही है। और वी प्राइम किस चीज के बराबर है? वो तो पहले से लिखा हुआ है माइनस